ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2015 में आया था। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ले रहे हैं न्यूमेरिकल बोर्ड का। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये गिवन है। A particle charge q and mass m moving with a velocity v enters the field at the origin xy plane। पहले हम लोग इसमें xy plane बनाएंगे। ये हमारा xy plane है। This is your xy plane, right? और magnetic field is set up along the positive x axis. So magnetic field B is along positive x-axis, right? Magnetic field B is along positive x-axis. A particle of charge Q and mass M moving with velocity V enters the field. Field में enter कर रहा है at the origin of the xy plane. This is origin of the xy plane. यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, सॉरी चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, such that it has velocity components. That means if it is making angle theta with the magnetic field, for example, अगर ये theta field बना रहा है, then such that it has velocity components both. Velocity components are both along and perpendicular to magnetic field. जो velocity component है वो आपका along भी है, that is along the magnetic field, and also perpendicular to the magnetic field. That means this velocity component is resolved into two components. One component is your v perpendicular component and another component is our v parallel component. Now if you remember, if this is your theta, then the component along the magnetic field, that is the velocity component along magnetic field is represented by B, that is your written as V cos theta, which we have already discussed while doing the numerical, while doing our theoretical theory part. And V perpendicular is here the component which is represented as V sin theta, right? So V parallel component is your V cos theta, which is along B, and this is perpendicular to magnetic field, that is B. So there arises a, when it enters the magnetic field, the two velocity components occur. One is along, that is V cos theta, another is perpendicular, which is our V sin theta. ठीक है? Trace, अब क्वेश्चन क्या है? What is the question? Trace and giving reason the trajectory means path followed by the particle. अब बताइए कि ये जो पार्टिकल एंटर हुआ है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इफ यू रिमेंबर, जब भी इस टाइप का पार्टिकल एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हमारा पार्टिकल क्या फॉलो करता है? ये हमारा पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो करता है। लाइक दिस द पार्टिकल विल फॉलो द हेलिकल पाथ, राइट? यहाँ पे मैं आपका z एक्सिस भी बना देती हूँ। Okay, the particle will follow helical path. Now v sin theta, when you know that when particle enters, when charged
when charge particle enters perpendicular to B, it follows circular path. Follows circular path, right? And follows circular path, and due to which component? Due to V sine theta component. Okay, and due to, since in the question it has been given that the velocity component along the field is also acting, so when the velocity component is parallel to field, in that case, due to this component, it follows what? It follows straight path along magnetic field. Hence, in such a situation, which type of trajectory is followed by the charge particle? Charge particle will follow helical path. तो आपका चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ. ओके, तो अब दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और जब V कंपोनेंट आपका पैरेलल टू फील्ड है, V कंपोनेंट आपका कौन सा? V cos थीटा. व्हेन इट इज पैरेलल टू फील्ड, तो ये आपका फॉलो क्या करता है? आपका इट फॉलोज योर व्हाट? स्ट्रेट पाथ. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ. दूसरा पूछा है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन. अब एक रोटेशन जब वो कंप्लीट करता है, तो बताइए वो कितना आपका क्या करेगा? वो कितना आपका स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, ठीक है? कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम पिच भी कहते हैं. पिच ऑफ द, that is also called pitch of helical path. अब pitch of helical path हमारा क्या है? Distance moved by the particle along B. Distance moved by the particle along what? Along B in one rotation. तो distance moved कितना आएगा? Distance moved will be, that means इस डायरेक्शन में वो आपका जो मूवमेंट हो रही है, तो कितना वो डिस्टेंस करेगा जब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा? तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट है? दिस वन, ठीक है? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो यू विल राइट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहाँ अप्लाई हो रहा है? v cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, इनटू टाइम. दैट मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है? अब हमारा दूसरा काम क्या है? टाइम को निकालना. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, डिस्टेंस कितना है हमारा? दैट इज एक सर्कुलर पाथ, कितना? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आ गया आपका, ठीक है? दूसरी बात आपका क्या है?
दिस v sin थीटा, इस v sin थीटा कंपोनेंट के कारण वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v sin थीटा के कारण इट फॉलो सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स कि जब आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हमें पता है, इट फॉलो सर्कुलर पाथ। एंड मोर ओवर द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कितना होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज when the charge enters perpendicular to magnetic field, force acting on charge particle is equal to QVB, right? And this force provides what, this force give rise to provides centripetal force। ये आपका कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज QVB is equal to what, mv square by r, mv square by r is the formula of your centripetal force। यहाँ v और v आपका कैंसिल हो गया, which implies, उसका मतलब अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, r को यहाँ पे ले जाइए तो r आपका रेडियस किसके इक्वल आएगा, mv बाई qb। ओके, अब इस r को हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इस r को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, इस टाइम में। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा दैट इज ये रहा आपका टाइम, टाइम आपका आ जाएगा दैट इज r इज इक्वल टू इतना आ गया और t इक्वल्स टू 2 पाई, r की जगह आपका दैट इज m v बाई QB, और नीचे आपका क्या है, v है, v को भी यहाँ पे लिख लीजिए, v और v कैंसिल हो गया तो टाइम कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन QB, right? Let us suppose this is your first equation, right? This one is your second equation. Up, put the value of t, put value of equation 2 in equation 1, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि बताइए डिस्टेंस कितना कवर होगा जब एक सर्कुलर पाथ कितना डिस्टेंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कवर करेगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, हमारा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू v cos थीटा into time, that is 2 pi m upon qb, or you can say distance covered is equal to 2 pi m v cos theta divided by qb. This is your solution, that is 2 pi mv cos theta qb. This is the distance covered by the particle along the magnetic field in one rotation. Okay.